Hey guys, you guys must have entered class 10th or 12th and you must be feeling directionless. अगर ऐसा हो रहा है तो there's no need to worry. I am here. I am Divyangna Gupta and I am here to guide you and be your mentor throughout this journey. And yeah, so आप कौन होती हो हमें बताने वाली? Well, I had scored 97% in my class 10th. I did it from CBSE board, and I scored 96% in my class 12th, which again I had done from the CBSE board, and I was from the bio background, that is PCB. So how should you study for class 10th? So it all comes from why are boards important, what is the significance of the board exams. Like if you compare it with the competitive examinations, they do not seem to have such an importance, but it's like, throughout your life there would be various instances, there would be various situations wherein you have to tell people about your board marks, or there would be some kind of forms which you have to be filling throughout. Even if you get 40 to 50 years old and you're applying for some job, you're applying for some course into any XYZ university, you would be requiring to fill your 10th and your 12th board marks. So that's where it gives you the confidence, and it also gives you a slight edge over the others. So therefore it is important to score decent marks for your board examinations. So एक तो है, जब भी तुम एंटर हुए हो क्लास 10th या फिर क्लास 12th, तो अपनी एक तो आइज़ क्लोज करो एंड अपना एक गोल बना लो, एक एम बना लो कि हाँ मुझे इतने नंबर लाने हैं, आई हैव टू गेन दीज मैनी मार्क्स, एंड उसके साथ साथ अपना एक सब्जेक्ट वाइज एम भी बनाओ कि हाँ इस सब्जेक्ट में कम से कम मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, तभी मेरे इतने परसेंटेज ओवरऑल में बन पाएंगे, राइट. So you have to be calculating like that. Close your eyes, make an aim, and just don't worry about it. If you keep working hard from the beginning, you will definitely achieve all those desired marks. And there's no need to worry because it's not so difficult. तो पहली चीज़ तो ये है कि अपना तुमने एम बना लिया, उसको अपने सामने लिख लो कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मार्क्स आई वुड हैव टू बी स्कोरिंग एंड दिस हैज़ टू गो लाइक दिस. So to make that you have to plan from advance. It doesn't have to be a very rigid plan or a very detailed plan. It just has to be कि हाँ मुझे क्या क्या करना है. तो उसके लिए एक चेक लिस्ट होनी चाहिए. सबसे पहली चेक लिस्ट तुम्हारी ये होनी चाहिए कि तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट्स की NCERT होनी चाहिए. दैट इज़ नेसेसिटी. So what will you do with NCERT? You have to of course read it. It is the basis of scoring marks in CBSE. देखो बिना NCERT करे तुम लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं पढ़ पाओगे. इनफैक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो बिना NCERT करे you won't be able to crack it, right? So NCERT becomes very important, like very important. And another point of consideration while you are going to buy your NCERT should be कि अपनी NCERT जब हम खरीदने जाए तो हम चेक करें कि वो लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है. बिकॉज कई बार पुराने वर्जन में कुछ मिस्टेक्स होती है या कुछ सिलेबस अमेंड होता है, तो फिर वो पुराने वर्जन्स लेना उतना हेल्पफुल नहीं होता. तो फिर whenever you go to the shop to buy your NCERT, just make sure that it is the latest version and ask your shopkeeper for it. Now and try to buy your new NCERT books. क्योंकि अगर तुम किसी भैया दीदी से किसी से लोगे तो फिर ऐसा हो जाता है कि उन्होंने उसमें पहले से ही कुछ मार्किंग्स करके रखे होंगे, तो फिर तुम अपने न्यू मार्किंग्स ऐड नहीं कर पाते हो. अगर न्यू बुक होगी, यू वुड हैव अ न्यू बुक, सो यू वुड बी वेरी इंडिपेंडेंट हाउ टू डेकोरेट इट. लाइक आई एम नॉट सेइंग डेकोरेट इट, बट इफ़ यू हाईलाइट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, you would be having some points which you would have to underline, and you would have to mark up some things your way, so you would be able to do that, right? तो वो तुम अपना खुद से, बिकॉज इफ़ यू वांट रिजल्ट तुम्हें खुद ही से एफर्ट लगा के सब करना पड़ेगा. यू वुड बी गेटिंग ऑनलाइन नोट्स, ऑनलाइन दिस दैट, वो सब ठीक है. इट कैन हेल्प यू टिल इट कैन हेल्प यू
बट इट विल नॉट हेल्प यू दैट मच जितना तुम खुद से इफ़ यू डू इट योर सेल्फ इट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल. सो डू दैट. सबसे पहले तुमने NCERT खरीद ली एंड नाउ अब तुम जैसे कि स्टार्ट होकर कुछ टाइम हुआ है, तुम्हारे 10th या 12th स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग का जोश तो होना ही चाहिए, दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड, बट नेवर जस्ट लूज़ होप. अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के चलो कि हाँ मैं पूरे साल करूँगा तो फिर मेरे बोर्ड्स में नंबर आ जाएंगे. एंड बोर्ड में नंबर लाना मुश्किल बात नहीं है. अगर मैं कर सकती हूँ, आई वॉज अ वेरी एवरेज चाइल्ड व्हेन आई वाज इन 6th-7th ग्रेड. तो अगर मैं कर सकती हूँ, अच्छे नंबर ला सकती हूँ, तो तुम भी ला सकते हो. और अपने 9th के मार्क्स से अपने 10th के मार्क्स बिल्कुल जज मत करना, बिकॉज 9th में तुम्हारी सारी चीज़ें जो होती हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन योर स्कूल का करिकुलम. इवन द लेवल ऑफ द पेपर, द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर माइट बी higher, so you cannot score very good marks in that. Sometimes it happens like that. तो ऐसा मत करो कि अपने 9th के मार्क्स से ऐसे 10th के लिए या फिर अपने पुराने ग्रेड्स के मार्क्स से अपने मार्क्स जज करके बैठ जाओ कि मेरे तो इतने आएंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी आ सकते. तुम बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट 10th में शो कर सकते हो एंड इट इज़ वेरी ईजी इफ़ यू आर हैविंग द राइट अप्रोच टूवर्ड्स इट. फिर तुमने NCERT ले ली. द सेकेंड पॉइंट वेरीज विद द सब्जेक्ट कि तुम कैसे अपने सब्जेक्ट को अप्रोच करोगे. तो अभी मैं 10th क्लास की बात कर रही हूँ. जब मैं 10th क्लास की बात कर रही हूँ, फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू टेल यू पीपल, लेट्स गो सब्जेक्ट वाइज. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लैंग्वेजेस. हिंदी एंड इंग्लिश होता ही है तुम्हारा. तो इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया था कि व्हेन 9th के ब्रेक्स ख़त्म हो गए थे, लाइक 9th का हमें वो मिला था ना गैप, 9th और 10th के बीच में कुछ गैप होता है, तो उस टाइम पे आई हैड बॉट द बुक्स ऑफ क्लास 10th. इन दैट टाइम इंग्लिश आई लव रीडिंग, सो आई हैड फिनिश दोज इंग्लिश का बुक्स इन 9th-10th का ब्रेक एंड समर वेकेशन. उस पार्ट में मैंने क्या किया था कि मैंने इंग्लिश की बुक्स एक बार पूरी पढ़ डाली थी. सो आई हैड एन आइडिया कि इसमें ये है. एंड इंग्लिश के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी तुम्हारे स्कूल में हो रहा है ना, दैट इज़ इनफ. स्कूल में हो रहा है, एक बार NCERT पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स उसे पढ़ना है, अंडरलाइन करना है. बैक क्वेश्चंस आर अ नेसेसरी. बैक क्वेश्चंस के साथ साथ जो इन टेक्स्ट में होता है, लाइक टेक्स्ट के साइड में होता है ना क्वेश्चंस, कुछ तुम्हारे पैराग्राफ्स के इधर साइड वगैरह में क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वो सब करना भी इम्पोर्टेंट है. उसके साथ साथ मतलब ये करो. और एक कोई भी अच्छी सी गाइड ले लो इंग्लिश के लिए. जैसे कि मेरे पास 2 गाइड्स थी, एग्ज़ाम आइडिया और ओसवाल. मैंने 2 इसलिए ली थी क्योंकि इससे कुछ समझना है तो उससे समझ आता है. मुझे ओसवाल ज़्यादा बेटर लगी. तो गो फॉर वट एवर लाइक योर टीचर टेल्स यू, आस्क देम, अप्रोच योर टीचर्स. तो फिर यू विल गेट अ गुड आइडिया कि कैसे करना है. सो also practice those sample questions, take care of the word limit. This all has to be done for English and it is not difficult. For the grammar part also and for the आगे writing वाला part जो होता है तुम्हारा, जो भी तुम्हारे सिलेबस में है, that also has to be practiced थोड़ा बहुत. You will get enough practice by the end of the year. तो उसके तुम चिंता मत करो. English has to go parallelly with all the other things. Similarly with Hindi also you have to read NCERT multiple times. Solve the back exercises, जो भी होता है, जो भी तुम्हारी टीचर तुम्हें बोलती है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराती है, that all has to be done. ठीक है. एंड उसको अच्छे से नोटबुक में लिख लो ताकि तुम्हें बार बार नेट को रेफ़र ना करना पड़े. बिकॉज फॉर स्टडिंग आई डोंट थिंक कि ऑनलाइन इतना बेटर रहता है, क्योंकि ऑनलाइन भी एज टीनेजर्स वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ काम एंड स्टिल माइंड. मोस्ट ऑफ अस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, मोस्ट ऑफ अस हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. बट इफ़ यू आर ऑफलाइन, इफ़ यू हैविंग दैट थिंग, तो फिर तुम हिंदी इंग्लिश यू विल डू ईजिली. ठीक है. उसके बाद अब हम आते हैं साइंस पे. तो साइंस में हमारे वही 3 पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बायो के लिए NCERT एंड जो भी डायग्राम्स तुम्हारी टीचर तुमसे बनवा रही हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एंड वाइल रीडिंग ये साइंस वाले बुक्स. और ये जो है ना, थ्योरी तो तुम्हें पढ़नी ही है NCERT से. बैक 10th के लिए बैक एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. 12th वाले इवन इफ यू डोंट डू योर बैक एक्सरसाइजेज इट वोंट बी ऑफ much significance, but 10th के लिए back exercises and in-text questions, they are very important.
तो तुम अपने सारे NCERT के करके रहना, ठीक है। और अब अंडरलाइन करते जाना, उस चीज़ को हाईलाइट करते जाना, और शॉर्ट नोट्स तो बनाते जाना साइंस में, कि जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री है उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखना है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। उसके साथ साथ अपनी नोटबुक कंप्लीट रखना, नोटबुक एज इन जो तुम्हारी टीचर कहती है, और जो तुमने अपने पर्सनल नोट्स बनाए वो सब भी तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए, ताकि तुम यू वुड हैव समथिंग टू रेफर। क्योंकि हर बार NCERT पढ़ना इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज कई बार हम बोर हो जाते हैं उससे, या कई बार हमें मन नहीं करता, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए जिसमें हमने खुद से NCERT और अपने जो भी टीचर ने बताया है वो सब हमने खुद से एक अपने पर्सनलाइज्ड वे में बनाया हुआ है, जिससे हम उसे पढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि हम जो भी करते हैं अपने इंटरेस्ट से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब NCERT पढ़ते जाओ तो भी कोई लाइन पढ़ो, उसके ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन बना लो, जिससे जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे दिमाग में सेट होती चली जाएगी। यू वुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड गो अंडरस्टैंडिंग ईच लाइन। अपने कुछ स्पेसिफिक सिम्बल्स या फिर कुछ मार्क्स बना दो, कि अगर तुम्हें ये कोई सेंटेंस या कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसके ऊपर जैसे स्टार मार्क बना दिया, या फिर तुम्हें ये क्वेश्चन पर्टिकुलर या फिर ये पर्टिकुलर लाइन समझ नहीं आ रही तो उसे अंडरलाइन करके उसके आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क बना दिया कि मेरे को ये समझ नहीं आया है, ये मैं बाद में मैम से पूछ लूँगा। सो दिस इज़ द वे ऑफ कवरिंग द थ्योरी। एंड अगर तुम्हारे स्कूल में यू डोंट थिंक कि उतने अच्छे टीचर्स हैं, वैसे 10th के लिए तो इट्स मोस्टली अगर तुम टीचर्स के साथ चलोगे इट वुड बी बेटर, बट कुछ जगह ऐसी हैं जो अगर तुम्हें कुछ स्कूल में समझ नहीं आया है तो उसे पैरेलली उसी दिन घर पे आके यूट्यूब से या जो भी तुम्हारी कोचिंग है उससे एक बार कवर कर लो, ताकि तुम्हारा साथ में होता चले सब, मतलब बैकलॉग मत होने देना, ठीक है। ये सब कर लो। और उसके बाद साइंस हो गया, अब मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट जो तुम कभी भी लाइटली नहीं ले सकते हो। तो मैथ्स के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने ट्यूशन लगाई थी ओनली फॉर मैथ्स। तो मेरी ट्यूशन वाली मैम शी वॉज अमेजिंग। तो वो एक तो सब जो NCERT है वो तो करना ही है, वो करा देती थी। उसके साथ साथ फॉर अ फ्यू चैप्टर्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स वाले जो चैप्टर्स हैं, और जो भी तुम्हारे 3-4 और चैप्टर होंगे जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें तुम्हें लगता है कि हाँ क्वेश्चंस कैन बी ट्विस्टेड, वो उन वाले चैप्टर्स की जो है आधी समय प्रैक्टिस कर लो अलॉन्ग विद NCERT। लाइक NCERT हैज़ टू बी बाइबल, हैज़ टू बी योर गीता, हैज़ टू बी योर कुरान, वट एवर। NCERT तो करनी है। NCERT में ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज करके छोड़ दो, यू हैव टू those examples, everything has to be on your fingertips, right? So after that अपना RD शर्मा प्रैक्टिस करो, और वो जो डेरिवेशंस होते जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट 5 मार्क्स के कई बार डेरिवेशंस उठ के आ जाते हैं, डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं, तो फिर वो सब एकदम टिप्स पे कर लो। कंस्ट्रक्शन, ग्राफ्स, जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस है वो तुम्हें बहुत ईजिली मार्क्स दे देंगे। ये सब चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग से करती चलनी है, हमें साथ साथ लेके चलनी है, कि हमने टीचर ने पढ़ा दिया चैप्टर तो आके ही उसको रिवाइज़ कर लो सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जो भी तुम्हारा एक रूटीन होना चाहिए कि जैसे तुम स्कूल से आए या फिर कोचिंग से आए, तो जैसे ही वो हर एक चीज़ एक बार ऐसे ना एक बार घुमा लो अपने आइज़ के सामने से, कि आज टीचर ने ये पढ़ाया, आई हैव गॉट ऑल दिस, आज ये पढ़ाया, अगर हाँ ठीक है ये मुझे समझ नहीं आया, मैं कल जाके दोबारा मैम से पूछ लूँगी या पूछ लूँगा। सो यू हैव टू गो लाइक दैट। एंड उसके साथ साथ ये सब करते रहो, पैरेलली अपने आप को लेके चलो पूरा साल। सो यू विल डू इट। हो गया हमारा, क्या हो गया, अब SST बचा। SST कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, आई वॉज अमंग देम। तो SST में तुम्हारा क्या है, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी। तो हिस्ट्री तो काफ़ी फैक्ट बेस्ड है, उसमें रोट लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वट एवर NCERT मल्टीपल टाइम्स अगेन फॉर हिस्ट्री, तो उसमें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसमें से कई बार डायरेक्टली जो टेक्स्ट बेस्ड है वही क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, जैसे तुम्हारे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के ऊपर लिखो, तो यू हैव टू नो ऑल दोज पॉइंट्स। तो उसके लिए तुम्हें NCERT मल्टीपल टाइम्स पढ़नी पड़ेगी, बैक एक्सरसाइज करके उसको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। एंड वो हिस्ट्री में तो तुम्हें लर्न करना है, और उसको मल्टीपल टाइम जितनी बार हो सकता है तुम पूरे साल में रिवाइज़ कर सकते हो, वो तुम्हें रिवाइज़ करते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है कि हिस्ट्री हो गया, फिर सिविक्स में भी वही होते हैं कि पॉइंट वाइज और जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो वो सिविक्स भी तुम्हें वैसे ही करना है कि पढ़ लेना है और समझ लेना है, तो ये सब करना है। उसके बाद ज्योग्राफी आ गया। ज्योग्राफी में अगेन अ ग्रेट डाइवर्सिटी,
मैप्स भी करने हैं, आंसर्स भी लिखने हैं, डायग्राम्स भी चाहिए, राइट। तो तुम उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में कवर कर सकते हो ईजिली। तुम उसको लर्न तो करना है ही ज्योग्राफी में भी, बट जो मैप्स हैं वो इजीली तुमको लास्ट में 5-10 मार्क्स, मतलब जो 5 मार्क्स दे के चले जाते हैं। तो मैप्स में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हारी मैम बोल रही हैं वो सब एकदम बाय हार्ट कर लेना। मैप्स हैव टू बी डन, क्योंकि मैप्स में कई बार नंबर लूज़ हो जाते हैं लास्ट में, एंड इतना कोई कॉम्प्लेक्स मैप्स नहीं आते, ईजी ही आते हैं। तो अपना इंडिया के मैप के प्रिंट आउट्स निकाल लो और उसको रख लो और उसको हर बार प्रैक्टिस करते जाओ मैप्स को। फिर आ गए इकोनॉमिक्स पे। अब इकोनॉमिक्स पे कई बार होता है कि ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, नॉट फ्रॉम इनसाइड डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की डायरेक्ट वर्ड तुमको चेप के नहीं आने होते कई बार इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स को ध्यान से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें टीचर से समझ आ रहा है तो टीचर से अपनी समझो, अगर नहीं समझ आ रहा तो गो ऑन टू यूट्यूब एंड फाइंड वट एवर टीचर सूट्स यू, और just try to understand economics, because economics cannot be done without understanding। क्योंकि कई बार ऐसे कुछ टर्म्स आ जाते हैं, कई बार ऐसे सेंटेंस ट्विस्ट करके दे देते हैं कि वी आर नॉट एबल टू डू इट। तो ये सारी चीज़ें हैं 10th के लिए। और 12th के लिए आई वुड लाइक टू मेक अ सेपरेट वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो वट एवर वीडियोज़ यू वॉन्ट नेक्स्ट, एंड आई वुड बी रियली pleased to help you people, and also like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye. Hey guys, you guys must have entered class 10th or 12th and you must be feeling directionless. अगर ऐसा हो रहा है तो there's no need to worry. I am here. I am Divyangna Gupta and I am here to guide you and be your mentor throughout this journey. And yeah, so आप कौन होती हो हमें बताने वाली? Well, I had scored 97% in my class 10th. I did it from CBSE board, and I scored 96% in my class 12th, which again I had done from the CBSE board, and I was from the bio background, that is PCB. So how should you study for class 10th? So it all comes from why are boards important, what is the significance of the board exams. Like, if you compare it with the competitive examinations, they do not seem to have such an importance, but it's like, throughout your life there would be various instances, there would be various situations wherein you have to tell people about your board marks, or there would be some kind of forms which you have to be filling throughout. Even if you get 40 to 50 years old and you are applying for some job, you're applying for some course into any XYZ university, you would be requiring to fill your 10th and your 12th board marks. So that's where it gives you the confidence, and it also gives you a slight edge over the others. So therefore it is important to score decent marks for your board examinations. So एक तो है जब भी तुम एंटर हुए हो क्लास 10th या फिर क्लास 12th, तो अपनी एक तो आइज़ क्लोज करो एंड अपना एक गोल बना लो, एक एम बना लो कि हाँ मुझे इतने नंबर लाने हैं, आई हैव टू गेन दीज मैनी मार्क्स। एंड उसके साथ साथ अपना एक सब्जेक्ट वाइज एम भी बनाओ कि हाँ इस सब्जेक्ट में कम से कम मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, तभी मेरे इतने परसेंटेज ओवरऑल में बन पाएंगे, राइट। So you have to be calculating like that. Close your eyes, make an aim, and just don't worry about it. If you keep working hard from the beginning, you will definitely achieve all those desired marks. And there's no need to worry because it's not so difficult. तो पहली चीज़ तो ये है कि अपना तुमने एम बना लिया, उसको अपने सामने लिख लो कि this is the amount of marks I would have to be scoring and this has to go like this. So to make that you have to plan from advance. It doesn't have to be a very rigid plan or a very detailed plan. It just has to be कि हाँ मुझे क्या क्या करना है। तो उसके लिए एक चेक लिस्ट होनी चाहिए। सबसे पहली चेक लिस्ट तुम्हारी ये होनी चाहिए कि तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट्स की NCERT होनी चाहिए, दैट इज़ नेसेसिटी।
So what will you do with NCERT? You have to of course read it. It is the basis of scoring marks in CBSE. देखो बिना NCERT करे तुम लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं पढ़ पाओगे. इनफैक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो बिना NCERT करे यू वोंट बी एबल टू क्रैक इट, राइट. सो NCERT becomes very important, like very important. And another point of consideration while you are going to buy your NCERT should be कि अपनी NCERT जब हम खरीदने जाएँ तो हम चेक करें कि वो लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है. बिकॉज कई बार पुराने वर्जन्स में कुछ मिस्टेक्स होती है या कुछ सिलेबस अमेंड होता है तो फिर वो पुराने वर्जन्स लेना उतना हेल्पफुल नहीं होता. तो फिर whenever you go to the shop to buy your NCERT, just make sure that it is the latest version and ask your shopkeeper for it. Now after and try to buy your new NCERT books, क्योंकि अगर तुम किसी भैया दीदी से किसी से लोगे तो फिर ऐसा हो जाता है कि उन्होंने उसमें पहले से ही कुछ मार्किंग्स करके रखे होंगे तो फिर तुम अपने न्यू मार्किंग्स ऐड नहीं कर पाते हो. अगर तुम्हारी फिर अगर न्यू बुक होगी, यू वुड हैव अ न्यू बुक, सो यू वुड बी वेरी इंडिपेंडेंट हाउ टू डेकोरेट इट. लाइक आई एम नॉट सेइंग डेकोरेट इट, बट if you highlight some important points, you would be having some points which you would have to underline and you would have to mark up some things your way, so you would be able to do that, right. तो वो तुम अपना खुद से, बिकॉज इफ़ यू वांट रिजल्ट तुम्हें खुद ही से एफर्ट लगा के सब करना पड़ेगा. यू वुड बी गेटिंग ऑनलाइन नोट्स, ऑनलाइन दिस दैट, वो सब ठीक है, इट कैन हेल्प यू टिल इट कैन हेल्प यू, बट इट विल नॉट हेल्प यू दैट मच जितना तुम खुद से इफ़ यू डू इट योर सेल्फ इट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल. सो डू दैट. सबसे पहले तुमने NCERT खरीद ली एंड नाउ अब तुम जैसे कि स्टार्ट होकर कुछ टाइम हुआ है, तुम्हारे 10th या 12th स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग का जोश तो होना ही चाहिए, दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड, बट नेवर जस्ट लूज़ होप. अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के चलो कि हाँ मैं पूरे साल करूँगा तो फिर मेरे बोर्ड्स में नंबर आ जाएंगे. एंड बोर्ड्स में नंबर लाना मुश्किल बात नहीं है. अगर मैं कर सकती हूँ, आई वॉज अ वेरी एवरेज चाइल्ड व्हेन आई वाज इन 6th-7th ग्रेड, तो अगर मैं कर सकती हूँ, अच्छे नंबर ला सकती हूँ, तो तुम भी ला सकते हो. और अपने 9th के मार्क्स से अपने 10th के मार्क्स बिल्कुल जज मत करना, बिकॉज 9th में तुम्हारी सारी चीज़ें जो होती हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन योर स्कूल का करिकुलम. इवन द लेवल ऑफ द पेपर, द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर माइट बी higher, so you cannot score very good marks in that. Sometimes it happens like that. तो ऐसा मत करो कि अपने 9th के मार्क्स से ऐसे 10th के लिए या फिर अपने पुराने ग्रेड्स के मार्क्स से अपने मार्क्स जज करके बैठ जाओ कि मेरे तो नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी आ सकते. तुम बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट 10th में शो कर सकते हो एंड इट इज़ वेरी ईजी इफ़ यू आर हैविंग द राइट अप्रोच टूवर्ड्स इट. फिर तुमने NCERT ले ली. The second point varies with the subject, कि तुम कैसे अपने सब्जेक्ट को अप्रोच करोगे. तो अभी मैं 10th क्लास की बात कर रही हूँ. जब मैं 10th क्लास की बात कर रही हूँ, फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू टेल यू पीपल, लेट्स गो सब्जेक्ट वाइज. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लैंग्वेजेस. हिंदी एंड इंग्लिश होता ही है तुम्हारा. तो इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया था कि व्हेन 9th के ब्रेक्स ख़त्म हो गए थे, लाइक 9th का हमें वो मिला था ना गैप, 9th और 10th के बीच में कुछ गैप होता है, तो उस टाइम पे आई हैड बॉट द बुक्स ऑफ क्लास 10th. इन दैट टाइम इंग्लिश आई लव रीडिंग, सो आई हैड फिनिश दोज इंग्लिश का बुक्स इन 9th-10th का ब्रेक एंड समर वेकेशन. उस पार्ट में मैंने क्या किया था कि मैंने इंग्लिश की बुक्स एक बार पूरी पढ़ डाली थी. सो आई हैड एन आइडिया कि इसमें ये है. एंड इंग्लिश के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी तुम्हारे स्कूल में हो रहा है ना, दैट इज़ इनफ. स्कूल में हो रहा है, एक बार NCERT पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स उसे पढ़ना है, अंडरलाइन करना है. बैक क्वेश्चंस आर अ नेसेसरी. बैक क्वेश्चंस के साथ साथ जो इन टेक्स्ट में होता है, लाइक टेक्स्ट के साइड में होता है ना क्वेश्चंस, कुछ तुम्हारे पैराग्राफ्स के इधर साइड वगैरह में क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वो सब करना भी इम्पोर्टेंट है. उसके साथ साथ मतलब ये करो. और एक कोई भी अच्छी सी गाइड ले लो इंग्लिश के लिए. जैसे कि मेरे पास 2 गाइड्स थी, एग्ज़ाम आइडिया और ओसवाल. मैंने 2 इसलिए ली थी क्योंकि इससे कुछ समझना है तो उससे समझ आता है. मुझे ओसवाल ज़्यादा बेटर लगी. तो गो फॉर वट एवर लाइक योर टीचर टेल्स यू, आस्क देम
अप्रोच योर टीचर्स, तो फिर यू विल गेट अ गुड आइडिया कि कैसे करना है. सो ऑल्सो प्रैक्टिस दो सैम्पल क्वेश्चंस, टेक केयर ऑफ द वर्ड लिमिट. दिस ऑल हैज़ टू बी डन फॉर इंग्लिश एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर द ग्रामर पार्ट ऑल्सो एंड फॉर द आगे राइटिंग वाला पार्ट जो होता है तुम्हारा, जो भी तुम्हारे सिलेबस में है, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड थोड़ा बहुत. यू विल गेट इनफ प्रैक्टिस बाय द एंड ऑफ द ईयर. तो उसके तुम चिंता मत करो. इंग्लिश हैज़ टू गो पैरेलली विद ऑल द अदर थिंग्स. सिमिलरली विद हिंदी ऑल्सो यू हैव टू रीड NCERT मल्टीपल टाइम्स, सॉल्व द बैक एक्सरसाइजेज, जो भी होता है, जो भी तुम्हारी टीचर तुम्हें बोलती है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराती है, दैट ऑल हैज़ टू बी डन. ठीक है. एंड उसको अच्छे से नोटबुक में लिख लो ताकि तुम्हें बार बार नेट को रेफ़र ना करना पड़े. बिकॉज फॉर स्टडिंग आई डोंट थिंक कि ऑनलाइन इतना बेटर रहता है, क्योंकि ऑनलाइन भी एज टीनेजर्स वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ काम एंड स्टिल माइंड. मोस्ट ऑफ अस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, मोस्ट ऑफ अस हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. बट इफ़ यू आर ऑफलाइन, इफ़ यू हैविंग दैट थिंग, तो फिर तुम हिंदी इंग्लिश यू विल डू ईजिली. ठीक है. उसके बाद अब हम आते हैं साइंस पे. तो साइंस में हमारे वही 3 पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बायो के लिए NCERT एंड जो भी डायग्राम्स तुम्हारी टीचर तुमसे बनवा रही हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एंड वाइल रीडिंग ये साइंस वाले बुक्स. और ये जो है ना, थ्योरी तो तुम्हें पढ़नी है NCERT से. बैक 10th के लिए बैक एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. 12th वाले इवन इफ यू डोंट डू योर बैक एक्सरसाइजेज इट वोंट बी ऑफ much significance, but 10th के लिए back exercises and in-text questions they are very important. तो तुम अपने सारे NCERT के करके रहना. ठीक है. और अब अंडरलाइन करते जाना, उस चीज़ को हाईलाइट करते जाना, और शॉर्ट नोट्स तो बनाते जाना साइंस में, कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखना है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. उसके साथ साथ अपनी नोटबुक कंप्लीट रखना. नोटबुक एज इन जो तुम्हारी टीचर कहती है, और जो तुमने अपने पर्सनल नोट्स बनाए वो सब भी तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए, ताकि तुम यू वुड हैव समथिंग टू रेफर. क्योंकि हर बार NCERT पढ़ना इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज कई बार हम बोर हो जाते हैं उससे, या कई बार हमें मन नहीं करता. तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए जिसमें हमने खुद से NCERT और अपने जो भी टीचर ने बताया है वो सब हमने खुद से एक अपने पर्सनलाइज्ड वे में बनाया हुआ है, जिससे हम उसे पढ़ सकें. ठीक है. क्योंकि हम जो भी करते हैं अपने इंटरेस्ट से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जब NCERT पढ़ते जाओ तो भी कोई लाइन पढ़ो, उसके ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन बना लो, जिससे जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे दिमाग में सेट होती चली जाएगी. यू वुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड गो अंडरस्टैंडिंग ईच लाइन. अपने कुछ स्पेसिफिक सिम्बल्स या फिर कुछ मार्क्स बना दो, कि अगर तुम्हें ये कोई सेंटेंस या कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसके ऊपर जैसे स्टार मार्क बना दिया, या फिर तुम्हें ये क्वेश्चन पर्टिकुलर या फिर ये पर्टिकुलर लाइन समझ नहीं आया तो उसे अंडरलाइन करके उसके आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क बना दिया कि मेरे को ये समझ नहीं आया है, ये मैं बाद में मैम से पूछ लूँगा. सो दिस इज़ द वे ऑफ कवरिंग द थ्योरी. एंड अगर तुम्हारे स्कूल में यू डोंट थिंक कि उतने अच्छे टीचर्स हैं, वैसे 10th के लिए तो इट्स मोस्टली अगर तुम टीचर्स के साथ चलोगे इट वुड बी बेटर. बट कुछ जगह ऐसी हैं जो अगर तुम्हें कुछ स्कूल में समझ नहीं आया है तो उसे पैरेलली उसी दिन घर पे आके यूट्यूब से या जो भी तुम्हारी कोचिंग है उससे एक बार कवर कर लो, ताकि तुम्हारा साथ में होता चले सब, मतलब बैकलॉग मत होने देना. ठीक है. ये सब कर लो. और उसके बाद साइंस हो गया. अब मैथ्स पे आते हैं. मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट जो तुम कभी भी लाइटली नहीं ले सकते हो. तो मैथ्स के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने ट्यूशन लगाई थी ओनली फॉर मैथ्स. तो मेरी ट्यूशन वाली मैम शी वॉज अमेजिंग. तो वो एक तो सब जो NCERT है वो तो करना ही है, वो करा देती थी. उसके साथ साथ फॉर अ फ्यू चैप्टर्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स वाले जो चैप्टर्स हैं, और जो भी तुम्हारे 3-4 और चैप्टर होंगे जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें तुम्हें लगता है कि हाँ क्वेश्चंस कैन बी ट्विस्टेड, वो उन वाले चैप्टर्स की जो है आधी समय प्रैक्टिस कर लो अलॉन्ग विद NCERT. लाइक NCERT हैज़ टू बी बाइबल, हैज़ टू बी योर गीता, हैज़ टू बी योर कुरान, वट एवर. NCERT तो करनी है. NCERT में ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज करके छोड़ दो. यू हैव टू those examples, everything has to be on your fingertips, right? So after that अपना RD शर्मा प्रैक्टिस करो. और वो जो डेरिवेशंस होते जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट 5 मार्क्स के कई बार डेरिवेशंस उठ के आ जाते हैं, डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो फिर वो सब एकदम टिप्स पे कर लो. कंस्ट्रक्शन, ग्राफ्स, जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है वो तुम्हें बहुत ईजिली मार्क्स दे देंगे.
ये सब चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग से करती चलनी है, हमें साथ साथ लेके चलनी है कि हमने टीचर ने पढ़ा दिया चैप्टर तो आके ही उसको रिवाइज कर लो सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जो भी तुम्हारा एक रूटीन होना चाहिए कि जैसे तुम स्कूल से आए या फिर कोचिंग से आए तो जैसे ही वो हर एक चीज़ एक बार ऐसे ना एक बार घुमा लो अपने आइज़ के सामने से कि आज टीचर ने ये पढ़ाया, आई हैव गॉट ऑल दिस, आज ये पढ़ाया, अगर हाँ ठीक है ये मुझे समझ नहीं आया मैं कल जाके दोबारा मैम से पूछ लूँगी या पूछ लूँगा। सो यू हैव टू गो लाइक दैट। एंड उसके साथ साथ ये सब करते रहो, पैरेलली अपने आप को लेके चलो पूरा साल। सो यू विल डू इट। हो गया हमारा, क्या हो गया, अब SST बचा। SST कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, आई वॉज अमंग देम। तो SST में तुम्हारा क्या है, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी। तो हिस्ट्री तो काफ़ी फैक्ट बेस्ड है, उसमें रोट लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वट एवर NCERT मल्टीपल टाइम्स अगेन फॉर हिस्ट्री, तो उसमें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसमें से कई बार डायरेक्टली जो टेक्स्ट बेस्ड है वही क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, जैसे तुम्हारे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के ऊपर लिखो तो यू हैव टू नो ऑल दोज पॉइंट्स। तो उसके लिए तुम्हें NCERT मल्टीपल टाइम्स पढ़नी पड़ेगी, बैक एक्सरसाइज करके उसको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। एंड वो हिस्ट्री में तो तुम्हें लर्न करना है और उसको मल्टीपल टाइम जितनी बार हो सकता है तुम पूरे साल में रिवाइज़ कर सकते हो, वो तुम्हें रिवाइज़ करते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है कि हिस्ट्री हो गया, फिर सिविक्स में भी वही होते हैं कि पॉइंट वाइज और जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो वो सिविक्स भी तुम्हें वैसे ही करना है कि पढ़ लेना है और समझ लेना है, तो ये सब करना है। उसके बाद ज्योग्राफी आ गया, ज्योग्राफी में अगेन अ ग्रेट डाइवर्सिटी, मैप्स भी करने हैं, आंसर्स भी लिखने हैं, डायग्राम्स भी चाहिए, राइट। तो तुम उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में कवर कर सकते हो इजीली। तुम उसको लर्न तो करना है ही ज्योग्राफी में भी, बट जो मैप्स हैं वो इजीली तुमको लास्ट में 5-10 मार्क्स मतलब 5 मार्क्स दे के चले जाते हैं। तो मैप्स में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हारी मैम बोल रही हैं वो सब एकदम बाय हार्ट कर लेना। मैप्स हैव टू बी डन, क्योंकि मैप्स में कई बार नंबर लूज हो जाते हैं लास्ट में, एंड इतना कोई कॉम्प्लेक्स मैप्स नहीं आते, ईजी ही आते हैं। तो अपना इंडिया के मैप के प्रिंट आउट्स निकाल लो और उसको रख लो और उसको हर बार प्रैक्टिस करते जाओ मैप्स को। फिर आ गए इकोनॉमिक्स पे। अब इकोनॉमिक्स पे कई बार होता है कि ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, नॉट फ्रॉम इनसाइड डायरेक्टली फ्रॉम NCERT की डायरेक्ट वर्ड तुमको चेप के नहीं आने होते कई बार इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स को ध्यान से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें टीचर से समझ आ रहा है तो टीचर से अपनी समझो, अगर नहीं समझ आ रहा तो गो ऑन टू YouTube एंड फाइंड वट एवर टीचर सूट्स यू, और just try to understand economics, because economics cannot be done without understanding। क्योंकि कई बार ऐसे कुछ टर्म्स आ जाते हैं, कई बार ऐसे सेंटेंस ट्विस्ट करके दे देते हैं कि we are not able to do it। तो ये सारी चीज़ें हैं 10th के लिए। और 12th के लिए I would like to make a separate video, and please comment down below whatever videos you want next, and I would be really pleased to help you people, and also like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye.